Okay students, let us find the area covered by these three inequalities. First one is 0 less than equal to y less than equal to x square plus 1. The second one is 0 less than equal to y less than equal to of x plus 1, and last one is 0 less than equal to x less than equal to 2. Okay, first of all we have to make the equations. First one is y is equal to x square plus 1. Second one is y is equal to x plus 1, and last one is x is equal to 2. Okay, first of all we make the equations from given three inequalities. Okay, first one is y is equal to x square plus 1. This is the inequality. First of all we make equations. First one is y is equal to x square plus 1. Second one is y is equal to x plus 1. Third is x is equal to 2. Students, we know that y is equal to x square plus 1 is the equation of parabola. Okay, कैसे देखो, we get to y minus 1 plus 1 goes to left hand side of the equal becomes y minus 1 is equal to x square, and we know that x square is equal to y is the equation of parabola symmetric with the positive y axis. Okay, so we can write it as x square is equal to y minus 1 can be written as x minus 0 to the whole square is equal to y minus 1, and when we compare it to x square is equal to 4ay. Okay, this is a type of our standard form of parabola, equation of parabola in standard form, that is x square is equal to 4ay is the equation of parabola symmetric with positive x-axis. And for vertex we know that the vertex is x is equal to 0 and y is equal to 0. Vertex at x is equal to 0 and y is equal to 0, and since here x is x minus 0 equal to 0, we get x is equal to 0, and the second one is y is y minus 1 is equal to 0, we get y is equal to 1. So new vertex of the parabola is equal to 0 and 1. Okay, x square plus 4ay is the standard form. Its vertex is at origin, that is 0 and 0. But here our equation of parabola is x minus 0 to the whole square is equal to y minus 1. Okay, so its vertex at 0 and 1. So new vertex is 0 and 1. The second one equation is y is equal to x plus 1, which is the equation of a straight line, that is linear equation in x and y. Okay, for finding the coordinates, for finding the points on x and y axis, we put x is equal to 0 for finding the coordinate on the y axis, and we put y is equal to 0 to find the coordinates of a point lying on the x axis. Okay, so and x is equal to 2. What is x equal to 2? X is equal to 2 is the equation of a line which is parallel to y axis at a distance of 2 units to the right side of the y axis. Okay, so let us draw the graph of these three curves. First one is parabola, second one is the straight line, and third one is the straight line parallel to y axis. Okay, कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखिए. This one is y axis, x axis. Our equation, our parabola is symmetric with the y axis and vertex is 0 and 1. Let this one is 0 and 1. So this one is our parabola. Equation of parabola is y is equal to x square plus 1. Okay. The second is y is equal to x plus 1. So if we put y is equal to x plus 1, if we put y is equal to 0, we get x is equal to minus 1. Okay, so let point A is minus 1 and 0. Let that point is A, and the coordinates of point A are minus 1 and 0. Since origin is here,
and point A should be -1 and 0, means at negative x-axis, -1 and 0. For finding the point on the y-axis, we put x is equal to 0. So in equation y is equal to x plus 1, if we put x is equal to 0, we get y is equal to 0 plus 1 and y is equal to 1. So let that point is B, whose coordinates are 0 and 1. So 0, 1 और 1 यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है 0 and 1. That is vertex of our parabola, whose equation is y is equal to x square plus 1. That is y minus 1 is equal to x square. ठीक है, अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज ए वाला. ओके, passing through the 2 points A and B, whose coordinates are -1 and 0 and 0 and 1. तो इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y is equal to x plus 1. ठीक है, ये रहा. And second is x is equal to 2. X is equal to 2. So we can find, let that point is P. Point P is the point of intersection. Point of intersection of the two curves. First is parabola and the straight line. So to finding the coordinates of point P, we have to solve these two equations simultaneously. कैसे solve करेंगे? Second one is the y is equal to x square plus 1 and second one is y is equal to x plus 1. क्लियर हो गया? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, वी हैव टू, फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. ओके, सिंस पॉइंट P इज द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस टू कर्व्स. कैसे सॉल्व करेंगे? y के प्लेस पे x प्लस 1 रखिए. x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. 1 and 1 get cancelled. x square and x, 1x cancelled, we get 1 is equal to x. So x is equal to 1, then y is equal to 1 plus 1. x is 1 and 1, 1 plus 1, 2. So y is 2. So the coordinates of point P are 1 and 2. So this one is 2. यहाँ पे क्या था? 1 था. ठीक है. सो इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P to x axis, let that is PM. So coordinates of point M are 1 and 0. The coordinates of point M are 1 and 0. Since the coordinates of P are 1 and 2, मतलब x coordinate 1 है, y coordinate 2 है. Means 1 is the distance of point P from y axis, 2 is the distance of point P from x axis. तो a आपका 2 है और a 1 है, 1 and 0. Second is the x is equal to 2. x is equal to 2 is the equation of a straight line which is parallel to y axis at a distance of 2 unit to the right side of the y axis. Okay, so 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे रहेगा. अब एक कोई लाइन है जो 2 से होके जा रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2. ओके, ये 2 यहाँ पे रहेगा. पॉइंट लेट दैट पॉइंट इज C. कोऑर्डिनेट ऑफ C आर 2 and 0. ओके, सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए द एरिया, द कॉमन एरिया बिटवीन द कर्व्स. फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 and y is equal to x plus 1. लास्ट वन इज x is equal to 2. इनका कॉमन रीजन क्या है? इनका कॉमन रीजन यही है. देखिए, अब a इसका यहाँ से a कॉमन रीजन है. मीन्स a वाला जो पोर्शन है, a पोर्शन आपको एक्स्ट्रा है. a पोर्शन हमें निकालना पड़ेगा. वी हैव टू डिक्रीज, मीन्स द एरिया from x is equal to 0 to 2 is the area made by x is equal to -1 to 2 and y is equal to x plus 1 and x is equal to 2. है समझ में? ये जो मैंने शेडेड किया है वर्टिकल लाइन से, द एरिया शोन बाई वर्टिकल लाइन्स इज द एरिया मेड बाई
लाइन दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। बट ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन जो मैंने डार्क शेडेड किया है ये पोर्शन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये वाला, ये पूरा कौन सा एरिया फॉर्म किया, x इज इक्वल टू -1 से लेके 2 तक जो मैंने वर्टिकल लाइन किया। ओके, बट ये जो कर्व है पैराबोला इज द एरिया, वो कहाँ से कहाँ तक एरिया फॉर्म कर रहा है, यहाँ से फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक -1 टू 2 में से ए पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों? सिंस द एरिया फॉर्म बाय द कर्व दैट इज पैराबोला इज यहाँ से, वो यहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, यहाँ से, मतलब ये पोर्शन उसके अंडर नहीं है, वो पोर्शन उसके बाहर है, आउटसाइड ऑफ द कर्व, वो बिलो द कर्व बना रहा है। ठीक है, किस लिमिट्स में, x इज इक्वल टू -1 टू 2, मतलब लोअर। तो बट जब आप कैलकुलेट करोगे एरिया फॉर्म बाय द कर्व दैट इज स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ से आएगा वो यहाँ से कवर पूरा, मतलब पूरा रहेगा। लेकिन ये वाला पोर्शन उसमें कॉमन नहीं है। कॉमन कहाँ से यहाँ तक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू 2 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1। वो निकालने के बाद ये जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन मतलब ये वाला, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैंने बताया। तो लेट अस दिस एरिया इज A1 और ए एरिया क्या है, A2 है। ये जो शेडेड है, डार्क शेडेड है, A2 है, और जो पूरा था, पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक वो A1 है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज लेट A दैट इज A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। क्लियर हो गया। हमें पूरे एरिया में से जो शेडेड रीजन है, शेडेड मतलब कॉमन रीजन मेड बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। सो वी गेट A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A1, पहले A1 हम फाइंड आउट करेंगे, पहले A1 फाइंड आउट करेंगे, उसमें से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 कैसे मिलेगा, A2 हमें मिलेगा इस तरीके से, बताता हूँ। ए वाला ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A1। तो A1 फाइंड आउट करते हैं। देखो A1 इज कैलकुलेटेड एज एरिया फ्रॉम -1 टू 2, -1 टू 2 ऑफ y dx। ठीक है, -1 यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक किसने बनाया, x इज इक्वल टू -1, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ -1, ये आपका y एक्सिस है। और कहाँ से, x इज इक्वल टू 2 तक। और किसने बनाया कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। सो राइट इट एज -1 टू 2, y इज x प्लस 1 dx, and this one is given as x square upon 2 plus x. Integral of x, that is x square upon 2, integral of 1 with respect to x is x, -1 to 2. This one is equal to 2 to the 4 upon 2. X is 2, 2 to the 4 upon 2 plus 2 minus lower limit -1 whole square upon 2 plus -1. This is 2 to the 4, 2 plus 2 4 minus 1 upon 2 plus, यहाँ प्लस रखा, लोअर लिमिट इज -1 टू द होल स्क्वायर इज 1 upon 2 minus 1 that is 4 minus 1 by 2 minus 1 that is -1 by 2. We get 4 plus 1 by 2 9 by 2, 4 to the 8, 8 plus 1 9 by 2। इस तरीके से आपने A1 कैलकुलेट किया।
अब बात आती है A2 कैसे मिलेगा फॉर A2। सो लेट अस फाइंड द A2। देखिए A2 कैसे मिलेगा। A2 इज द रीजन मेड बाय टू कर्व्स। फर्स्ट वन इज द एरिया मेड बाय द स्ट्रेट लाइन। देखो A2 ये वाला पोर्शन, ये वाला कैसे मिलेगा। ये वाला यहाँ से देखो, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, लिमिट्स 0 to 1, लोअर लिमिट इज 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये रीजन कर्व जो शेडेड रीजन है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक है, मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। कर्व्स कौन कौन से हैं, कर्व इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ओके, कर्व ये जो पार्ट है किसका पार्ट है, स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है कर्विलीनियर है, वो किसका पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है। ओके, तो लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। सो A2 इज इक्वल टू, A2 इज द कॉमन रीजन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, एरिया मेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड area made by the curve, that is parabola. Let A2 is equal to, let A3 is the area made by x is equal to 0 to x is equal to 1 and straight line. Okay, A2 and A4 is the area made by x is equal to 0 to x is equal to 1 and the curve, ये वाला पोर्शन। मतलब इसने जो एरिया बनाया उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन का पार्ट है उसने जो एरिया बनाया। ओके, मीन्स एरिया मेड बाय BP माइनस एरिया मेड बाय दैट इज ये जो कर इसके पार्ट, ए वाला पार्ट है, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन रीजन आएगा। क्यों, क्योंकि ए यहाँ से लेके यहाँ तक बना रहा है और ए वाला यहाँ से लेके यहाँ तक बना रहा है। ओके, तो अगर हम पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो बचेगा, पूरे इतने में से अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेडेड रीजन ही तो बचेगा। ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। A3 मीन्स 0 to 1 ऑफ y dx माइनस 0 to 1 ऑफ y dx। y डिफरेंट है, हाँ, y टेकन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, y टेकन फ्रॉम पैराबोला, that is 0 to 1, y is x plus 1 dx minus 0 to 1, y is x square plus 1 dx। आया समझ में भाई, एक y स्ट्रेट लाइन यहाँ तक बनाया एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने कहाँ तक बनाया, इतना बनाया। हमें अगर टोटल में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल में से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो बचेगा। ओके, तो देख लेते हैं। दिस वन इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस x फ्रॉम 0 to 1 माइनस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x फ्रॉम 0 to 1। अपर लिमिट इज 1/2 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, एंड 1/3 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो ये 3/2 आया और ये माइनस अपॉन 1, 3 1 जा 3, दैट इज 4/3। ओके, तो 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 3 2 जा 6, दैट इज 1/6। सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया इज कैलकुलेटेड एज जो पूरा एरिया था जो आपने यहाँ निकाला है 9/2, मतलब द एरिया इज इक्वल टू यहाँ वाला ए इज इक्वल टू A1 माइनस A2, आपने A2 निकाला अभी, A2 इज 1/6 स्क्वायर यूनिट, दैट इज ए वाला शेडेड जो मैंने डार्क शेड किया है उसका एरिया आया है 1/6, और पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा मैंने वर्टिकल लाइन से शेडेड किया है वह 9/2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 9/2 था, बट ए एरिया कॉमन रीजन नहीं है, तो पूरे में से जो यहाँ से यहाँ तक था उसमें पूरे में से, पूरा मतलब क्या, 9/2 में से अगर हम A2 दैट इज 1/6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट द होल एरिया
minus the common region, that is area of shaded region, which is 1/6 square unit, we get the area covered by x is equal to -1 to x is equal to 2 and the y is equal to x square plus 1 और x is equal to दूसरा कहाँ है x is equal to 2, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, x is equal to 2, क्लियर, x is equal to, अच्छा यहाँ पे x is equal to यहाँ पे है भाई, इसका नाम लिख देता हूँ x is equal to 2, ओके। तो ये हो गया आपका 9 6 जा 54 -2 1 जा 2 6 2 जा 12 मतलब 52/12, करेक्ट ना। 9/2 -1/6 9 6 जा 54 2 1 जा 2 6 2 जा 12 तो 52/12 3 1 जा ये कटता किसी से 2 से कटेगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 1 जा 13/2 13/3 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 13/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से आप एरिया, अगर कोई आपको इनइक्वालिटीज दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, उसके बाद हमें कॉमन रीजन ढूंढना है। तो आपको x इज इक्वल टू -1 टू पहले 2 तक जाना है, क्योंकि अभी ए यहाँ पर पूरा एरिया कवर किया है इसने, लेकिन ये जो कर्व ये जो है पैराबोला उसका वो कहाँ एरिया बना रहा है, वो यहाँ से बना रहा है, उसका एरिया यहाँ से, मतलब ये यहाँ डाउनवर्ड बनाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ए हमें पोर्शन नहीं चाहिए, ए कॉमन रीजन नहीं आ रहा है सबका, हमें ए वाला एरिया हमको निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया बनाया, फिर ये जो कॉमन रीजन एरिया का उसका वो पोर्शन निकाल दिया, वो पोर्शन कैलकुलेट किया, उसके बाद कॉमन पूरा जो होल रीजन था उसमें से ये जो शेडेड रीजन उसको माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया बताया। तो आवर एरिया कवर्ड बाय these 3 inequalities is 13/3 square unit, okay। 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 12 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा, ओके। सो प्लीज़ मेक अ नोट, कोई डाउट है तो बताइए, ओके।